Good morning, students. This is Aisha, your English educator, and today I am going to start a new chapter, chapter number 11, The Proposal, written by Anton Chekhov. So, first of all, I would like to tell you something about Anton Chekhov. So, Anton Pavlovich Chekhov, 29th January, he was born in 29th of January 1860s and he was died at 15 July 1904. He was a Russian playwright and short story writer who is considered to be among the greatest writers of story fiction in history. So, we can say The Proposal is a one-act play which ends in a single action. So let's start now. The Proposal. It is about marriage proposal written by Anton Chekhov. For your read activity, the word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? As you know that the word proposal has many meanings. There are too many meanings for this word, but can you guess here what is the meaning for this proposal? Yes, we can guess here. It stands for the marriage proposal and a suggestion, plan or scheme for doing something. So here in this story we can see the suggestions, plans and scheme for doing something, or you can see some planning for the marriage ceremony, an offer for a possible plan or action, and you can also see here an offer for a possible plan or action which was done in this one act play. So the act of asking someone's hand in marriage, and here you can see in this play that someone is asking for the hand of his daughter for marriage. So let's start a Russian wedding. Here we can see how Russians used to plan their weddings. Do you know anything about a Russian marriage ceremony? क्या आप रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में कुछ जानते हैं कि किस तरह से वो लोग अपनी मैरिज सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से उनके रिचुअल्स होते हैं, किस तरह से उनकी प्लानिंग होती है? सो रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग. सो इस पूरे प्ले में एक रशियन वेडिंग के बारे में ही बात की जा रही है. ये आर्टिकल जो है एक रशियन वेडिंग के ही बारे में बता रहा है. प्रिपरेशन फॉर ए रशियन वेडिंग एंड preparations are going on for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple, and a Russian wedding celebrated in a very simple manner, and the planning only includes arrange for rings, bride's dress, cards and a reception. सो जो रशियन वेडिंग होती है वो बहुत ही सिंपल तरीके से मनाई जाती है, और इन रशियन वेडिंग्स के लिए जो प्लानिंग होती है वो भी सिर्फ एक रिंग्स को अरेंज करना होता है और ब्राइड की एक ड्रेस को अरेंज करना होता है. ऐसे यू नो कि इंडियन वेडिंग्स में क्या होता है, बहुत सारी ड्रेसेस अरेंज करनी पड़ती हैं ब्राइड्स के लिए, ब्राइड ग्रूम के लिए एंड गेस्ट्स के लिए. बट रशियन वेडिंग में क्या होता है कि रशियन वेडिंग में ब्राइड्स के लिए सिर्फ एक ही ड्रेस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, एक बॉल गाउन का, जो कि वो अपने मैरिज वेडिंग सेरेमनी में पहनते हैं. और किस चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ता है? रिंग्स का, ब्राइड ड्रेस का, कार्ड्स का. कार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस चैप्टर में, क्योंकि कार से इनका जो रशियन वेडिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल है जो कि मनाया जाएगा. एंड अ रिसेप्शन, एंड दे आर अरेंजिंग फॉर अ रिसेप्शन. ईदर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, बट नाउअडेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस. पहले क्या होता था कि जो भी रिसेप्शन में जो भी पे किया जाता था वो लड़के ब्राइड की फैमिली की तरफ से किया जाता था, बट अभी आजकल क्या होता है कि ब्राइड के फैमिली मेम्बर्स और जो ग्रूम के फैमिली मेम्बर्स हैं दोनों मिलकर उन एक्सपेंसेस को पे करते हैं. अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, और रशियन वेडिंग 2 दिन के लिए मनाई जाती है. सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और कुछ वेडिंग्स ऐसी भी होती हैं जो काफ़ी दिन के लिए मनाई जाती हैं. यू कैन सी इन इंडिया ऑल्सो कि इंडिया में भी कुछ वेडिंग्स जो हैं 2 और 3 days के लिए सेलिब्रेट की जाती हैं, बट कुछ वेडिंग्स जो हैं मोर देन 2 और 3 days
के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो ग्रैंड बहुत सेलिब्रेशन होता है जिनका, तो उनको 2 और 1 डेज से मोर लगता है। द बेस्ट फ्रेंड, a Russian wedding lasts for some weddings last as long as a week and the occasion becomes something to remember for years. और वो जो सेलिब्रेशन है, जो ग्रैंड सेलिब्रेशन है, कई सालों तक याद रहता है। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। नेसेसरी पार्ट ऑफ वेडिंग सेरेमनी, तो रशियन का जो वेडिंग सेरेमनी का जो बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है वो क्या है, सेवरल कार्स, कुछ कार्स के लिए जो अरेंजमेंट करना है या फिर उनका जो प्रोसेशन है वो करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम, जो दूल्हे के ग्रूम के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग फ्यू टाइम्स, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ग्रूम के, वो दुल्हन से कई बार, शादी से पहले ही कई बार मिलते हैं और कुछ उसके बारे में कुछ नॉलेज कलेक्ट करते हैं। एंड मेक्स पोस्टर्स, और कुछ पोस्टर्स भी बनाते हैं, राइट स्पीचेस, कुछ स्पीचेस लिखते हैं। एंड ऑर्गेनाइज कंटेस्ट, और कुछ कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि शादी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जब ग्रूम जो है ब्राइड को लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाने के लिए आता है, तो ही हैज़ टू फाइट टू गो गेट हर, तो उसको इस वहाँ से ले जाने के लिए बहुत सारे फाइट करने पड़ते हैं। एंड और इस तरह से जो दूल्हे के ग्रूम के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो कुछ रिचुअल्स बनाते हैं जिनको एक फाइट के रूप में क्रॉस करते हुए ग्रूम को आगे जाना पड़ता है, और हर बार उसको पास करने के बाद ही वो दुल्हन तक पहुंच पाएंगे। ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स, एज यू नो, रशियंस जो हैं बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, इन टॉल बिल्डिंग्स। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स, और वहाँ तक ग्रूम को, दुल्हन तक, ब्राइड तक पहुँचने के लिए बहुत सारी स्टेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है, टू रीच हिज ब्राइड। बट एट ईच लैंडिंग वेयर द स्टेयर्स एंड्स, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग, और बट एट ईच लैंडिंग, और हर एक लैंडिंग पर उसे क्या करना पड़ता है, ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन, उसे एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, टू बी अलाउड टू गो अप, और ऊपर जाने के लिए। अगर उसे और ऊपर जाना है तो उसको एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना पड़ेगा। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और जो ब्राइड के दोस्त होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कुछ क्वेश्चंस वो ब्राइड से रिलेटेड होते हैं, समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, और कभी कभी कुछ रिडल्स होती हैं बहुत डिफिकल्ट, लाइक यू कैन से पहेलियाँ, जो कि उनको आंसर करना पड़ता है। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और ग्रूम जो है अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उन क्वेश्चंस का आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज़, और कभी कभी उनको कुछ फोटोज़ दिखाए जाते हैं, और बेबी गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियों के, एंड ही मस्ट टू से विच वन इज हिज ब्राइड इज, और वहाँ पर उन्हें बताना पड़ता है कि उनमें से उनकी ब्राइड कौन सी है। इफ़ ही गेस्ड रॉन्ग, अगर वो कोई रॉन्ग गेस करते हैं, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, तो उनको आगे जाने के लिए पे करना पड़ता है। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स आफ्टर टू। फिर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो शहर का, सिटी का साइट्स को, व्यूज़ को देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं कार लेकर। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, और 2 or 3 hours लेटर दे केम बैक टू देयर रिसेप्शन। एंड फिर वो क्या है, 2-3 घंटे तक घूमने के बाद वो रिसेप्शन में वापस आते हैं। द कपल सिट्स एट अ स्पेशल अरेंज टेबल, एज यू नो कि कभी कभी जब मैरिज सेरेमनी होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारी टेबल्स अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज की जाती हैं, और जो कपल है, मैरिज कपल है, न्यूली मैरिज कपल है, उसके लिए एक स्पेशल जो फ्रंट वाला टेबल होता है वो अरेंज किया जाता है, जहाँ पर उन दोनों को अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठना होता है, फ्रेंड्स के साथ और इनवाइटेड गेस्ट के साथ बैठना होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, गेस्ट भी होते हैं जो अलग अलग टेबल ग्रुप्स पर बैठे होते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल, एंड फिर रिसेप्शन स्टार्ट होता है जब वो अपने अपने ग्लास ऊपर करके कुछ ब्लेसिंग्स मैरिज कपल्स को देते हैं। A wedding toast is a custom where a close friends or relatives of the groom or the bride says a few words to wish the couple.
तो टोस्ट जो होता है क्या होता है कि अभी न्यूली जो वेडिंग कपल है उसको ब्लेसिंग देने के लिए लोग अपना ग्लास ऊपर करते हैं जो कि वाइन से फिल्ड होता है, और उसको ऊपर करके वो कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं दोनों को. द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. देन द ग्रूम जो है वो ब्राइड को किस करता है. तब उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है रशियन वेडिंग का. आफ्टर ए फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन. फिर उसके बाद ही लोग क्या करते हैं, खाना पीना और सब फन करना स्टार्ट कर देते हैं. आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, शी डिसअपियर्स. और कुछ टाइम के बाद ही ब्राइड को वहाँ से स्टोल कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है. शी डिसअपियर्स, वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है. एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और फिर ग्रूम ब्राइड को ढूंढता है. एंड इज आस्क्ड टू पे अ फी, और उसको ढूंढने के लिए उसको कुछ पे करना पड़ता है ब्राइड के फ्रेंड्स को. यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, और ये उसके ही दोस्त होते हैं जो ब्राइड को चुरा कर ले जाते हैं. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड्स शू. देन देयर आर द ब्राइड्स, और फिर ब्राइड्स की जो फ्रेंड्स हैं वो जो ग्रूम के शूज़ हैं, ब्राइड के शूज़ हैं, उनको स्टील करके वहाँ से ले जाते हैं, और फिर उनको दोबारा पाने के लिए, वो गेट करने के लिए उनको पे करना पड़ता है. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स tasks whatever were given to the couple, these are called tussles, and continue partying. फिर गेस्ट क्या होते हैं, ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं इन सारे टास्क को देखकर, और फिर उसमें पार्टिसिपेशन अपना बनाए रखते हैं.